निशाना अचूक है, लक्ष्य भेद कर ही आएगी। ब्रह्मोस निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। विनाश की ये बदली बारूद ही बरसाएगी। सबूत पर अटके हो तो सबूत भी दिखाएगी। आज आपको एविएशन एक्सपर्ट्स और ऑस्ट्रिया के सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर का विश्लेषण भी सुनना चाहिए। उन्होंने भारत के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हवाई जंग में भारत स्पष्ट तौर पर विजेता रहा है। भारत ने ग्राउंड पर मौजूद पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर हमला किया, पाकिस्तानी वायुसेना को बॉर्डर से दूर धकेला। इसका मतलब यह है कि भारत की वायुसेना पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के करीब जाकर पाकिस्तान के अंदर तक मिसाइल दागने में सक्षम थी। टॉम कूपर ने यह भी कहा कि ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमला किया, बल्कि उसके न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पर भी हमला करना शुरू किया, जिनमें शायद सरगोधा और नूर खान एयरबेस शामिल है। खुद सुनिए। The more it went on, through evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive, major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles to targets deeper inside Pakistan. And then the final, so to say, nail in the coffin was this operation early on 10th of May, when the Indian Air Force hit not only Pakistani air bases, but, and I know this is contrary to official statements in New Delhi, it started hitting also nuclear weapons storage facilities, at least in Sargodha complex, and probably also in Nur Khan. Apparently also it was a command center for the Pakistani nuclear forces. टॉम कूपर के अलावा अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी और वॉर एक्सपर्ट्स, ध्यान से सुनिए, जॉन स्पेंसर, जिनकी बात दुनिया सुनती है, उन्होंने भारत की कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की निर्णायक जीत है। भारत आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति को नए स्तर पर ले गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आतंक का जवाब युद्ध से मिलेगा। जॉन स्पेंसर ने भारत के फैसलों की भी जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारत ने पहले की तरह न तो संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई, न ही पाकिस्तान को कोई चेतावनी दी। भारत ने सीधे लड़ाकू विमान भेजे, सटीक निशानों पर हमला किया। यह दिखावे की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सोच समझकर की गई सैन्य कार्रवाई थी। I understand the real capability is required to do that, and the precision and proportionality that was used by the Indian Air Force to penetrate air defenses at will and strike the very important terror camps that India wanted to strike, but also to defend Indian cities and Indian sites with a multi-factor air defense system for the drones and all of that the Pakistan military sent towards India. I believe it is clear and credible. You only have deterrence if you have capability, which India has demonstrated, immense capability, and the will to use it. I walked the ground of the 2008 Mumbai attacks, and what India's response was only diplomatic, even though it was shown to be Pakistan ISI-sponsored Lashkar-e-Taiba attack. This is a clear signal that that's all done. India will respond to attacks by the sponsorship, which was the Pakistan military and the Pakistan government. So I think it's a very strong message, but also a credible message. ये सब वाहवाही कर रहे हैं हिंदुस्तान की। क्यों कर रहे हैं? ये टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि इनको किस देश से कैसा रिश्ता रखना है, कहां पर क्या तोल मोल करना है, ये समझ नहीं आता। उनको ये समझ में आता है कि कौन सा देश आतंकवाद को पनपा रहा है, उनके आकाओं को संभाल रहा है, कौन सा देश सर्जिकल तरीके से जवाब दे रहा है। आज आपको ब्रिटेन की संसद में वहां के एक सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उनका भी बयान सुनना चाहिए।
उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। उन्होंने अपनी संसद में यह पूछा कि ब्रिटेन पीओके से आतंकी कैंप हटाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। सच सिर्फ एक है, पाकिस्तान को भारत के हाथों हार मिली है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इस हार को अपनी जीत बता रहा है, अब ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अपने जिहादी मुल्क में प्रचार शुरू कर दिया है कि उसने भारत को शिकस्त दे दी। लगातार पिछले 2 दिन से हम दिखा रहे हैं अपनी हकीकत अपनी आवाम को नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, उनकी आंख में धूल झोंक रहा है। अब पूरे पाकिस्तान भर के जिहादी सड़कों पर निकलकर इस फर्जी जश्न को मनाने में लग गए हैं। ये पूरा प्लान करके किया जा रहा है ताकि ये जिहादी निकलें, वो लोगों को धर्म के नाम पर उकसाएं, वो ये बताएं कि ये पाकिस्तान की जीत है, फर्जी जश्न मनाया जाए। पाकिस्तान में जिहाद एक उत्सव की तरह होता है। ये देखिए सामने हुजूम। पाकिस्तान में जिहाद एक उत्सव की तरह होता है। उस जिहाद वाले उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ मची हुई है। एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है। किस पैमाने पर चल रहा है आप देखिए। कस्में खाई जा रही हैं कि अगली बार का नाश्ता सीधे हिंदुस्तान में करेंगे। कि बुरी तरह से पिटे हैं। अपने फाइटर विमान, लड़ाकू विमान तैयार किए, एयर स्ट्रिप्स तब तक इंडिया ने उड़ा दिए थे। ये पाकिस्तान के आम लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान की जिहादी आवाम है जो मजहब के नाम पर मर मिटने को तैयार है। सबसे पहले आप एक छोटा सा सैंपल देखिए, फिर बताएंगे कि कैसे भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के बिलों में छिपे हुए ये आतंकी बाहर निकल आए हैं और अब तो पाकिस्तान की सरकार और फौज से हाफिज सईद को बाहर निकालने की मांग हो रही है। सबसे पहले आप ये छोटा सा जरा सा सैंपल देखिए, फिर कहानी बताएं। जब तमाम लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन सब फुस हो गए हों तो माइक पर ही चिल्ला लिया जाए। ये भी लेकिन क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जिहादियों की ऐसी रैलियां पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। अभी आपने जो रैली देखी वो कराची में हुई थी जिसमें बहुत से आतंकी संगठन शामिल थे। वहां पर ऐसा ही होता है। आप भारत में देखेंगे कि कई एनजीओज निकलेंगे रैली करने, राजनीतिक पार्टियां निकलेंगी, वहां पर आतंकी संगठन निकलते हैं और फिर आतंकी संगठन मिलके कई बार निकलते हैं। ऐसी एक रैली एबटाबाद में हुई। एबटाबाद वही जगह है जहां से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा था। सोचिए, उसी एबटाबाद में हाफिज सईद के आतंकी संगठन की रैली हो रही है और ये उसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में मारा गया था, उसने एक ऐसी आतंकी घटना को 9/11 अमेरिका में अंजाम दिया था जिसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अमेरिका वो भी भूल गया। खैर, वापस आइए। एबटाबाद जहां पर उसामा बिन लादेन मारा गया है, वहां पर हाफिज सईद ने एक राजनीतिक दल बनाया है, मिल्ली मुस्लिम लीग। असल में यह हाफिज के आतंकी संगठन का ही फ्रंट है, क्योंकि जब उसका संगठन बैन होता है, FATF से बहुत दबाव बढ़ा पाकिस्तान पर, उसको दरकिनार किया, तो उसने ये संगठन बना लिया। इसी आतंकी फ्रंट के जिहादियों की एबटाबाद में रैली हुई जिसमें भारत के खिलाफ जहर फैलाया गया है, लेकिन खुलेआम हाफिज सईद का नाम लिया गया। हाफिज सईद के नाम के नारे लगे। बाकायदा पाकिस्तान की सरकार ये डिमांड की गई कि हाफिज सईद को रिहा करो, फिर देखो पाकिस्तान की जिहादी वाली ये ताकत कहां तक जीतती है। देखा आपने, ये खुलेआम हो रहा है। हाफिज का नाम लिया जा रहा है, हाफिज को रिहा करने की बात हो रही है। पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ये सब सबूत है। एबटाबाद में हो रहा। हाफिज सईद तो एक ग्लोबल टेररिस्ट है। यहाँ उसके जिहादी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भारत को धमका रहे हैं। हम हाफिज की औलादें हैं, हिंदुस्तान को लेने आ रहे हैं। ये तो आतंकियों की मुनादी है। भारत को धमकी दे रहे हैं। हाफिज से जिहादी बता रहे हैं कि वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये इनपुट भी है कि अब भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के आतंकी भारत पर हमला कर सकते हैं। खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान को जिहाद की ताकत बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो अमेरिका पाकिस्तान का फ़ोन नहीं उठाता था वो तुम्हें पुचकार रहा है क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ा है। अब उसके इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दरअसल ये लोग मुनीर को बता रहे हैं कि तुम तो वैसे ही नाकाम हो, तुम्हारी कोई ताकत है नहीं, हमारी वजह से तुमसे अमेरिका बात भी कर रहा है, फोन ही नहीं उठाता था तुम्हारा, हम जिहाद कर रहे हैं तब वो तुमसे डर रहा है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू भारत के सिखों को भड़का रहा था
और कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो सिख भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे। आज पन्नू के लिए भी हाफिज के जिहादियों ने एबटाबाद से एक मैसेज भेजा है। हाफिज का जिहादी खुलेआम ये स्वीकार कर रहा है कि जिस तरह उन्होंने सिखों को वहां से भगाया उसी तरह से वो मोदी को भी दिल्ली से भगाएंगे। हाफिज का जिहादी बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के इस हिस्से से उन्होंने सिखों को भगा दिया और धमकी दे रहा है कि इसी तरह से अब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो भगाएंगे। ये हिंदुस्तान से कैसे भगा सकते हैं? एक बात तो तय है कि भारतीय सेना की कार्रवाई निशाना सही लगा है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जिहादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है? क्या अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई और दूसरे सबूत चाहिए?